ओके गाइस, सो कल वाली क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया था। नाउ आज हम लोग वेरियस ऑर्डर्स को थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। सो दिस इज नीट 2026 रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। लेट्स गो ऑन टू जीरो ऑर्डर। नाउ जब हम लोग जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर रिमेंबर व्हाट वी हैड डन येस्टरडे वाज कि जीरो ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर सपोज हम लोग ले रहे हैं A2 प्रोडक्ट्स, then we done yesterday that rate for zero order that will be equal to K into concentration of A raised to power 0, or it is equal to K, which is the rate constant. There are a few photochemical reactions or few heterogeneous reactions जो कि zero order होती है. जैसे for example अगर हम लोग ले ले the combination of hydrogen plus chlorine in presence of H nu to give us 2HCl gaseous. ये photochemical reaction जो है ये zero order reaction है. So the reaction that is studied by placing H2 and Cl2 gases over water. Then another example of zero order which we can take is decomposition of N2O on hot platinum surface. So अगर आप N2O ले रहे हो और उसको hot platinum surface पे रख रहे हैं तो वो decompose हो रहा है into N2 plus half of O2. Now, rate over here will not depend upon the concentration of N2O, and it can be written as rate is equal to K into concentration of N2O raised to power 0, right? Then another example which we can take over here is the decomposition of ammonia, or let's say in the presence of molybdenum या टंगस्टन, तो वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. लाइक इफ यू टेकन 2NH3 और इन प्रेजेंस ऑफ molybdenum हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू गिव अस N2 plus 3H2. राइट. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करती है लीनियरली विथ टाइम, which means that concentration at time t that is equal to concentration at time 0, which is initial concentration minus kt. एक रिलेशन हमने करना है, ये याद. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद जो टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, दैट इज कि जब टाइम एट विच ए इज इक्वल टू 0, तो टी कंप्लीशन जो होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टी कंप्लीशन दैट विल बी इक्वल टू concentration of A naught upon K. So which means initial concentration upon rate constant. Number 3, units जो होते हैं of the rate constant that will be equal to moles per liter per second. Right. Then let's go on to the first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें जो रेट है उसको हम डिटर्मिन करते हैं बाय द चेंज ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ओनली. जैसे फॉर एग्जांपल हमको रेट लिखता है तो dx अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स. राइट. सो जहाँ पे a जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और x जो है वो डिसोसिएशन कितनी हुई है रिएक्टेंट की, वो x है. Right? Or we can write this as dx upon a minus x that is equal to k dt. ठीक है. अपॉन इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग dx upon a minus x that is equal to k dt. ठीक है. और we can write this as minus log of natural log of a minus x that is equal to kt plus c. ओके. अब अगर t is equal to 0, if t is equal to 0 and x is equal to 0,
तो C जो है that will become equal to minus natural log of A. ठीक है. Now putting the values of C, finally हमारे पास जो first order integrated rate equation आती है that will be equal to K is equal to 2.303 upon T log of A upon A minus X. The derivation for us is not important. More important for us is this. इसमें से आपको एक question जरूर आएगा, mark my words. Right? Now there are two important conclusions जो कि हम इस equation से निकाल सकते हैं. क्या है वो two important conclusions? Number one, ये सबसे important part है kinetics का from your examination point of view. सो रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको सारे ऑर्डर्स की पता होनी चाहिए, राइट. सो फर्स्ट कंक्लूजन जो हम निकालते हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो होगा विल नॉट चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के. ओके, सो वी कैन से दैट के दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of 10 n a upon n a minus x. ठीक है, क्लियर. अब अगर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ पे मतलब n को एज एन इंटीजर हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस x. ठीक है, क्योंकि जो चेंज कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में होगा इट विल नॉट चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के. So we are going to use this equation to calculate the value of K over here. All right. Then number 2. Second हमारे पास क्या है? जो time taken है for the completion of same fraction of change that is independent of initial concentration. ठीक है. सो अगर सपोज हम लोग बोले कि x की जो वैल्यू है दैट इज 0.5a और t जो है दैट इज इक्वल टू t हाफ. तो हाफ लाइफ पीरियड भी हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. k की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बिकम इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log ऑफ a अपॉन 0.5a. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 upon t half log of 2. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं. log of 2 की वैल्यू 0.3010 होती है. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.693 अपॉन t half. ठीक है, so you can calculate half life period from here. ये जो टाइम t है in which the initial concentration becomes half, इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं? This is known as the half life period. हाफ लाइफ पीरियड. इस पे से भी हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, और जब log of concentration of reactant at various intervals of time is plotted against the time intervals तो हमारे पास एक straight line आती है. So this is how the graph is going to be. This is अगर हम लोग k की वैल्यू कर रहे हैं, wait let me just take another screen and explain this more properly because इसमें से भी हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं टी हाफ, देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये हमारा ग्राफ आएगा. ठीक है, अगर हम k के साथ कर रहे हैं, अगर आपको k के साथ दे रखा है t हाफ, तो दिस इज हाउ योर ग्राफ इज गोइंग टू कम. ऑलराइट, देन वी गो ऑन टू द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में आपको सिर्फ यूनिट जो रेट कांस्टेंट का वो आना चाहिए बिकॉज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आपके सिलेबस में है नहीं. ओके, सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल सिर्फ हम लोग देख लेते हैं.
Number 1, hydrolysis of ester by an alkali, CH3, COO, C2H5 plus NaOH. This is going to give us CH3COONA plus C2H5OH. So this is an example of second order. Okay. Another example is the decomposition of NO2. So 2NO2 to give us 2NO plus O2. This is another example of second order. Okay. Methods of determination of order of a reaction is going to be our next topic. कोई भी अगर आपको doubts है तो please comment box में आप लिख सकते हो और please share the videos, like the videos and subscribe to the channel for more videos.